start करूँ? Our today's topic is on nephritis. By the end of this presentation, the audience should be able to compare the clinical features of the types of nephritis and list management options for each, and mention the essentials about thick infestation of the lashes and its management. We have two broad types of nephritis, anterior and posterior. I have compared both of them. Areas affected are in anterior nephritis, the area around lash basis is affected, while in posterior nephritis, the posterior lid margin involving the meibomian glands affected. Anterior nephritis has further two types, staphylococcal and seborrheic. These all are associated with some systemic conditions. Staphylococcal nephritis is cell-mediated immunity based, so it is associated with atopic dermatitis, and seborrheic nephritis is associated with seborrheic dermatitis, while posterior nephritis is associated with acne rosacea. Anterior nephritis में abnormal cell-mediated immunity होती है against the cell wall of Staph aureus. Staph aureus एक commensal है जो conjunctiva या lid में normally present हो सकता है. In posterior nephritis, बैक्टीरिया जो है वो लाइपेजेस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो टीयर फिल्म के लिपिड्स और जो सेबेशियस सिक्रीशन के लिपिड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं फ्री फैटी एसिड्स में, जिससे मेल्टिंग पॉइंट जो है सेबेशियस सिक्रीशंस का वो रेज हो जाता है. जब किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट रेज होगा तो ज़्यादा देर तक सॉलिड रहेगी, तो सेबेशियस सिक्रीशन सॉलिड रहती हैं और ब्लॉक हो जाती हैं, और जब कोई डक ब्लॉक हो जाए तो इन्फेक्शन हो जाती है. सुपर इम्पोर्टेंट. सेकेंडली, टीयर फिल्म फॉस्फोलिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है. फॉस्फोलिपिड सर्फेक्टेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, सो टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी भी खराब हो जाती है. एंटीरियर नेफ्राइटिस इज थॉट टू हैव अ क्रॉनिक इन्फेक्टिव etiology, while posterior nephritis is more of a chronic inflammatory condition. दो माइट्स होते हैं जो कि हेरी एरिया इन द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और लैशेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. डेमोडेक्स फॉलिकुलरम लॉन्गस और डेमोडेक्स फॉलिकुलरम ब्रेविस, इनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा. This is a table from Kansky which shows signs and symptoms or performance. साइन एंड सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो लैश के अराउंड डिपॉजिट्स की बात होगी. तो इसमें थोड़ा मिस्टेक्स ही है. तो ये अमेरिकन अकेडमी से पिक्चर दी गई है. दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं डिपॉजिट्स की. एक सिलेंड्रिकल डैंड्रफ होती है जो एक लैश के अराउंड सिलेंडर सा बना होता है, इसको कोलरेट मेंशन किया है बाकी जगहों से. बाकी जो है वो हॉरिजॉन्टल से स्केल्स होते हैं. ये दो ब्रॉड टाइप्स हैं डिपॉजिट्स की. First, we'll come to the features of anterior nephritis, which is divided into two types. First of all, we have the staphylococcal anterior nephritis. It involves scales around the bases of lashes, and the scales may, on removal, ulcerate and bleed as well. Secondly, there may be, in chronic cases, there may be lid notching, poliosis, metarosis, or even trichoriasis. Apart from that, there may be erythema of the lid margin or ecchymosis. And the second type of anterior nephritis is seborrheic nephritis. In seborrheic nephritis, the lid has somewhat greasy appearance, and the scales, as compared to the staphylococcal nephritis, are softer, and the lids and the lashes may be matted with each other as well. इसके अलावा आपको जनरलाइज सेबोरिया के फीचर में मिल सकते हैं, जैसे मेसोलेबियल फोल्ड्स में स्केल्स होंगे डैंड्रफ के, या बैक ऑफ द ईयर पर. दिस इज अगेन a picture of anterior nephritis. Most likely this looks like staphylococcal nephritis, and this also. And in the last picture you can see the lid is quite enclosed. This is again a
of anterior blepharitis, and it appears to be seborrheic. Go back. The photograph on the right lower part, can you note something? लिड मार्जिन पे कोई चीज नजर आ रही है? और इतनी मोटी सी एक चीज पड़ी हुई है लैटरल मार्जिन पे। हाँ, ये फोटोग्राफ मैंने इसलिए भेजी थी आपकी, ये आपका टॉपिक था टिच इन्फेक्शन, तो मैंने जो दूसरी भेजी वो कहाँ है? तो आगे तो इसकी मैग्नीफाइड है वो, तो you should not miss any finding on the photograph. इतनी बड़ी टिक नजर आ रही है। चलो नेक्स्ट। As mentioned earlier, blepharitis की etiology में डेमोटेक्स का रोल भी मिला है। डेमोटेक्स बेसिकली एक माइट होता है जो कि हेरी एरिया ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा लैशेज में भी प्रेजेंट हो सकता है और मेबोमियन ग्लैंड में भी। It has been seen that, or it has been postulated that blepharitis may also be due to hypersensitivity response to this pathogen. Demodex may also be found in the lashes of elderly people without any associated symptoms. And the collarets or the cylindrical deposit is the hallmark of this Demodex involvement. However, it should be kept in mind that the features of anterior posterior blepharitis both may coexist, and both of these are highly associated with dry eye disease as well. In symptoms of blepharitis, there are generalized symptoms of dry eyes like burning sensation, grittiness, stinging, and crusting of lid margins. Photophobia may also be present. Now we'll come to the features of posterior blepharitis. Due to excessive meibomian secretion production or abnormal production, we may find meibomian capping. These oil globules are present on the tips of meibomian openings. Secondly, there may be pouting of meibomian openings. As you can see, they are quite prominent over here. And on compression of the meibomian glands, there may be expression of toothpaste-like purulent material. Or if they are highly clogged, then they may not express any material at all. Secondly, meibomianitis में tear film instability बहुत ज़्यादा होती है। Abnormal tear film की वजह से foaming हो सकती है lid margin पे। This picture is magnified, so it is not very clear, but you can see the prominent meibomian openings over here. Secondly, there may be associated features or complications of blepharitis like punctate epithelial erosions, corneal neovascularization, sty formation, chalazion formation, and marginal keratitis as well. Now we'll come to the treatment options. The most important and the first step is lid hygiene. Lid hygiene may involve the use of baby shampoo, as we commonly see, and we may also use alcohol scrubs, but we have to be careful as it may be irritating. And it also includes meibomian expression, especially in the cases of meibomianitis. Warm compresses से हम meibomian glands को प्रेस करते हैं ताकि purulent material बाहर निकलता रहे और clogging खत्म हो। Then we have the role of antibiotics. Topical antibiotics में हम एसिडिक एसिड, क्लोराम्फेनिकोल, बेसिट्रियसिन, एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। सिस्टेमिक में हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन का इम्पोर्टेंट रोल है। डॉक्सीसाइक्लिन की डोज जो है वो टिपिकली 50 to 100 mg BD फॉर फर्स्ट वीक एंड देन 6 to 24 वीक्स के लिए OD में यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म इसका ये है कि ये बैक्टीरियल लाइपेज इनहिबिटर है। जब लाइपेजेस इनहिबिट हो जाएंगे बैक्टीरिया के, तो फैटी एसिड प्रोडक्शन और फिर मेल्टिंग पॉइंट रेज होने वाली जो साइकिल है वो बंद हो जाएगी। डॉक्सीसाइक्लिन का मेन रोल पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कुछ हैं डॉक्सीसाइक्लिन की, लाइक चिल्ड्रन बिलो 12, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ग्रोइंग बोन में डिपॉजिट होती है। सेकेंडली प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल में भी इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। Patient must be warned about photosensitivity reactions.
So it has an alternative which we can use, which is as erythromycin 250 mg PD or OD. Doxycycline is important in posterior blepharitis, while azithromycin, which is typically given in 3 cycles 1 week apart, each cycle consisting of 3 consecutive days of 500 mg OD dosing. azithromycin का रोल ज़्यादा इंटीरियर ब्लेफराइटिस में, डॉक्सीसाइक्लिन को पोस्टीरियर में. Plant and fish oil supplements can be given as well. Dry eye disease, important association as lubrication is a must. Topical steroids provide like FML, fluorometholone or loteprednol provide symptomatic relief. टी ट्री ऑयल स्क्रब्स का यूज़ जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है डेमोटेक्स इन्फेक्शन में. जब भी कन्वेंशनल ब्लेफराइटिस की ट्रीटमेंट से सिम्टम्स रिजॉल्व ना हो रहे हो तो हमारा जो है माइंड को डेमोटेक्स की तरफ ज़रूर जाना चाहिए. डेमोटेक्स की 3 मेन ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं. टी ट्री ऑयल है, दूसरा हाइपोक्लोरस एसिड एप्लीकेशन है ऑन द लिड्स, एंड आइवरमेक्टिन का रोल भी देखा गया और डेमोटेक्स. In the last we have novel therapies like topical cyclosporin or second line immunosuppressants, pulse light application, and devices which probe, heat or express meibomian glands, for example LipiFlow. बाकी जो associations हैं like stye, chalazion, marginal keratitis, flicktoniosis, they must also be treated as well. Thyrsus palpebrarum. Thyrus pubis is a crab louse which lives, as the name implies, in the pubic hair, and if such a louse lives in the eyelashes or the lids, then it is known as palpebrarum. It is incidentally found, usually on slit lamp examination, as conjunctivitis is uncommon. 6 legs होती हैं इसकी, टिक्स की 8 legs होती हैं. ये डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल होती है. ओवा भी इसके मिल सकते हैं और इसका मैकेनिकल रिमूवल करना होता है, और साथ में मर्क्यूरिक ऑक्साइड या पेट्रोलियम जेली का यूज़ भी कर सकते हैं. और बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी स्क्रीन करवा के उनकी डीलाउजिंग ज़रूरी है. ये इसकी 6 लेग्स हैं, और ये जो ओवल से स्ट्रक्चर मिल रहे हैं लैश बेस पे, ये इसके ओवा हैं. This is a picture showing a magnified view of this louse. The next topic is tick infestation of the eyelid. It must be removed as soon as possible, as deer tick or this tick is usually involved in Rocky Mountain African fever, Lyme disease, tularemia. ये serious disease हैं, तो जितना जल्दी हो सके इनको remove कर देना चाहिए lashes से. Removal technique involves the use of either scabies creams or perithrin containing lotions, जिससे ये लूज हो जाती हैं और 24 आवर्स में फॉल कर जाती हैं. अदरवाइज इट में बी रिमूव विद फाइन फोर्सेप्स और इन चिल्ड्रन ब्लंट फोर्सेप्स. ओरल डॉक्सीसाइक्लिन का रोल भी देखा गया, स्पेशली इसको दिया जाता है एंडेमिक एरियाज में प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे. डियर टिक बाइट के बाद प्रोफाइलैक्टिकली आप डॉक्सीसाइक्लिन स्टार्ट करवा सकते हैं. दिस इज द टिक in the above picture, and the second picture shows the condition after removal. Now we'll come to angular blepharitis. Pathogens involved are Moraxella lacunata, Staph aureus, and rarely herpes simplex virus. As the name implies, features of blepharitis like scaling and crusting may be present on lateral canthus, medial canthus, or both, but not on the entire lid. We can use topical antibiotics for treatment. This is the picture showing crusting of the skin and slight fissuring on the lateral canthus. और DTs में हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सेसिव टीयरिंग की वजह से बालों का स्किन की कंडीशन ऐसी हो जाती है. Childhood blepharoconjunctivitis is usually presents around 6 years of age. It is comprised of recurrent episode of anterior or posterior blepharitis, so साथ में recurrent stye formation या chalazion भी हो सकती है. Follicles, papillae and flictans may be found.
and some corneal changes as mentioned earlier like neovascularization, axial subepithelial haze, marginal keratitis may be present. बच्चे बहुत रब करते हैं जिसकी वजह से हम इसको एलर्जी से कंफ्यूज कर सकते हैं और पैपिली की वजह से भी. ट्रीटमेंट इन्वॉल्व एंटीबायोटिक्स एंड स्टीरॉइड. स्पॉट डायग्नोसिस. मार्जिनल केराटाइटिस है, कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स हैं, लिम्बस टेयर हुआ है और मार्जिन पे बिल्कुल. मार्जिनल केराटाइटिस यूजुअली होता है जहाँ पे लिड मार्जिन जो है वो लिम्बस से कांटेक्ट करता है, यूजुअली 2, 4 और 8 o'clock. ये 4 o'clock और ये 8 o'clock है और ज़रूरी नहीं इसमें इन्फ्लेम पिक्चर बहुत ज़्यादा और सिर्फ प्लेनली इन्फिल्ट्रेट्स भी मिल सकते हैं. ये दोनों इन्फिल्ट्रेट्स हैं. Take home messages is that blepharitis is a chronic condition, so we should not give hope about complete cure. पेशेंट को हमने बताना होता है कि इसके रिलैप्सेस भी आते हैं, एक्सर्सिपेशन भी आती है और आपने इसको बस कंट्रोल करना है मेडिकेशन के थ्रू. और एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस को एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसका फ़ायदा भी और नुकसान भी है. नुकसान ये कन्फ्यूजन हो जाती है, फ़ायदा ये कि दोनों की ट्रीटमेंट दी जा सकती है. Fibrin colorate around the base of lashes in children is due to meibomian seborrhea, meibomianitis, squamous blepharitis या ulcerative blepharitis. Ulcerative है इसका आंसर. Ulcerative blepharitis usually staphylococcal blepharitis के साथ intermingle word use इंटरचेंजेबली करते हैं. कॉलरेट डेमोडेक्स में मिल जाते हैं लेकिन स्टैफ में भी अक्सर मिल जाते हैं. हॉलमार्क की डेमोडेक्स का लेकिन स्टैफ के साथ अक्सर ये देखे गए हैं. और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस स्टैफ में जो है जो स्केल्स को जब रिमूव करते हैं तो अल्सर बन जाता है आमतौर पे, इसलिए स्टेफिलोकोकल ब्लेफराइटिस के लिए हम अल्सरेटिव का वर्ड भी यूज़ करते हैं. फीचर ऑफ सेबोरिक ब्लेफराइटिस इज हार्ड स्केल, टेन्यूल, सॉफ्ट स्केल्स, ulceration, lid margin notching और soft scale. Male patient was complaining of continuous redness of both eyes, foreign body sensation and frequent loss of lashes. On examination, lid margin were hyperemic and the lashes were matted with yellow crusts, which left painful ulcers on trying to most reliable diagnosis. One table I forgot to mention earlier. ये टेबल है. इसमें चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. मोस्टली ये कि लोकेशन का तो हमें आइडिया है. लैश लॉस जो होता है वो स्टेफिलोकोकल में अक्सर मिल जाता है, बाकी दोनों में रेयर होता है. क्रस्टिंग का भी हमें आइडिया है किस टाइप के होते हैं. अल्सर सिर्फ स्टेफिलोकोकल में बनते हैं. कंजक्टिवाइटिस पेपिलरी रिएक्शन, पेपिली ज़रूरी नहीं एलर्जी में मिले. पेपिला एक साइन होता है विच इज़ नॉन स्पेसिफिक, सो इट कैन बी फाउंड इन बोथ ऑल ऑफ दीज. केराटाइटिस इंफीरियर पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन मिल सकती है स्टैफ में विद मार्जिनल इन्फिल्ट्रेट्स, वेस्कुलराइजेशन एंड फ्लिक्टेनिलोसिस. बाकी दोनों में से ये फीचर्स हैं, लेकिन सेबोरिक में यूजुअली सिर्फ पंक्टेट इरोजन ही मिलती हैं. वेस्कुलराइजेशन एंड फ्लिक्टेन्यूल ज़्यादातर नहीं मिलता. Topic because of two reasons. Number one, it is very prevalent that blepharitis leads to dry eye, and dry eye is present in almost half of our OPD patients. Every other patient complains of itching, burning, मरने को दिल करता है, खारिश होती है. So you see this is treatable cause. वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स देंगे वो ब्लेफराइटिस ट्रीट हो जाएगा. सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट लीड्स टू एंडोप्hthalmitis if not treated properly before the intraocular surgery.
like cataract surgery, keratoplasty, even corneal refractive surgery. You see, in most of the endophthalmitis cases, this is the normal flora of the person which is responsible for the infection. So if the number of microorganisms are increased on the eyelid, there is more chances of having endophthalmitis. So if you delay the operation for 1 week, give antibiotic course, the chances will be reduced. So this is preventable cause. Before jumping to the cataract surgery, we have to exclude conjunctivitis, blepharitis, dacryocystitis, so that there is no organisms present around the eye which gain inside and cause this problem. कैटरेक्ट के बाद जो आपकी नज़र पहले जानी चाहिए ना, वो इन चीज़ों पे जानी चाहिए कि ब्लेफराइटिस तो नहीं, ठीक है, और फिर उसके बाद सबोरिया तो नहीं है, एक्जिमा तो नहीं है, ये स्किन की कंडीशन में सारा रिजर्वायर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे पेशेंट्स को वो हो जाती है इन्फेक्शन। तो प्रिवेंट करें। और see, I am not very happy with your style of presentation. कि थोड़ी सी कोशिश करें, आपकी कितने दिनों के बाद आती है? हफ्ते 10 दिन के बाद आपकी प्रेजेंटेशन पहले तो नहीं आती, आपके पास टाइम होता है, आप टॉपिक सर्कुलेट करें, सारों से कोशिश करें को फोटोग्राफ मांगे, आपके पास इतने सारे सीनियर सुपरवाइजर्स हैं, किसी के पास चले जाएं, कोई कंफ्यूजन है उसको रिमूव करें, प्रैक्टिस करें, रिहर्स करें। तो ये जो 2 पेजेस कैल्सकी के आपने स्लाइडों पे डाल के पढ़ दिए हैं ना, मतलब ये 10% ऑफ द जॉब है, ठीक है। ओसीटी का जो है ऑपरेटर है, उसके साथ सलाम दुआ रखें, गपशप, भाई कोई ओसीटी में कोई फाइंडिंग आए मुझे बुला लें, मुझे फोटो भेज दें। तो यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, आप थोड़ी सी कोशिश करें मटेरियल इकट्ठा करने की। सोहेल साहब के पास मोबाइल में सैकड़ों तस्वीरें होंगी, जाहिर साहब के पास होंगी, सब, ठीक है। तो अगर आप 2-4 दिन पहले इनको कहेंगे ये ढूंढ ढांड के आपको दे देंगे, आप कोशिश तो करें। या रात को उन्होंने मुझे 11:30 बजे मैसेज किया कि जी वो मेरी कल प्रेजेंटेशन है। उसी वक्त मैंने अपनी किताब खोली, उसमें से 4 तस्वीरें मुझे मिली। वो फोमी स्पीशीज और भी थी, लेकिन वो 12 बज गए हुए, मैं कहा चलो 3-4। सो कहने का मतलब अपना ओरिजिनल जो मटेरियल है ना, वो कलेक्ट करने की कोशिश करें। ये छापा मारने वाला काम जो है ना, ये ऐसे ही है जैसे लंडे के पुराने कपड़े आप अंग्रेजों के उतारे हुए पहन लें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो अपना ड्रेस होना, अपनी फोटोग्राफ होनी चाहिए। और ये जो आपकी प्रेजेंटेशन में होता है ना, कॉर्नियल एरोजन स्टाइल, सबकी एक फोटोग्राफ लगा, हवा में बात मत करें। फोटोग्राफ कॉर्नियल एरोजन क्या पैटर्न होता है ब्लेफराइटिस में, कॉर्नियल एरोजन। अब ये तो एक्सप्लेन करने की चीज है। और कौन कौन से पैटर्न होते हैं जो मिडल ऑफ पैल्पेब्रल फिशर में एरोजन होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? सुपीरियर लिम्बस पे जो होते हैं वो किस वजह से? थोड़ा सा डिटेल में जाए ना, मतलब ये तो ऐसे कॉर्नियल एरोजन होते हैं। एंड अबाउट MCQs, the first 2 MCQs were correct information but were of C1. So in fibrin colorate are present, and so this is recall acceptable in first year but not in second or third year, ठीक है। जो नंबर 3 MCQ था वो एक सिनारियो था, उसमें 2 या 3 फाइंडिंग, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंच, वो C2 C3 था, राइट। तो एक्सेप्ट वाला तो इज अनएक्सेप्टेबल, किसी में एक्सेप्ट नहीं आना चाहिए। ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव, which of the following is not true, which of the following is false, these all are unacceptable, confusing होते हैं, वो बंदा चकराए। और वो पेज का पेज लगाने की जरूरत नहीं, आप मिनिमम वर्ड्स स्लाइड पे रखें जो आप एक्सप्लेन कर सकें और जो अगले लोगों को समझ आए।
इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है जो ऑडियंस पढ़ ना सके, आप समझा ना सके, आपकी मेहनत तो जाहिर है। तो सो हैव मिनिमम वर्ड्स, हैव फोटोग्राफ, हैव वीडियो क्लिप्स। अब इस पे अगर वो आप जैसे यूट्यूब से लाउस और टिक और माइट की वो एक छोटी छोटी वीडियो निकाल लेते हैं ना, तो इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग। हमारा कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार, किसको माइट कहते हैं, किसको टिक कहते हैं, किसको लाउस कहते हैं, डांस कहते हैं। सो इस पर थोड़ी मेहनत करें। और आपने करना क्या है सारा दिन? घर जाके रोटियां तो नहीं पकाते हैं? इसमें मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि शुरू से हम शुरू करते हैं। मुझे बताएं कि ये सिम्टम्स जो थी, इचिंग इज अ साइन ऑफ एलर्जी, नॉट अ साइन ऑफ ब्लेफाइटिस। याद रखें, इचिंग अगर बर्निंग के साथ एसोसिएट है, इचिंग प्लस बर्निंग, तो हम ब्लेफाइटिस सोचेंगे। अगर सिर्फ इचिंग है तो दैट इज अ साइन ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो सबसे कॉमन सिम्टम है बर्निंग। सेकंड, बर्निंग के बाद सेकंड आप इचिंग लिखते हैं जो आपने की। थर्ड सिम्टम क्या है? ग्रिटीनेस। वर्ड अपना स्पेसिफाई करें, ग्रिटीनेस। अब ग्रिटीनेस जो है वो साइन ऑफ एसोसिएटेड ड्राई आई। सिर्फ ग्रिटीनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो ड्राई आई को पहले सोचें, आप सोचें ब्लेफाइटिस को रूल आउट करें। और अगर बर्निंग के साथ ग्रिटीनेस के साथ दोनों प्रेजेंट कर रहा है तो आप कुछ देखे बगैर सोचें कि इसमें मोस्ट लाइकली ब्लेफाइटिस होगा। और कौन से सिम्टम्स? Stickiness of lashes in the morning. स्टिकीनेस में क्वेश्चन क्या पूछेंगे? स्टिकी है, 2-3 दिन से स्टिकी हो रही है, या कुछ और मसला हो, या ज्यादा दिन से स्टिकी है, क्या है? सुबह के बाद स्टिकी है, कब से है? अगर 2-4 दिन से हो सकता है कोई फ्रेश इन्फेक्शन हुई तो काफी अरसे से फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर फ्यू वीक्स उसको ये स्टिकीनेस की कंप्लेंट आ रही है। दैट इज अ साइन ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज। जबकि 1-2 दिन से स्टिकीनेस है तो यही जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पूरी उसकी डिटेल अंदर उसके प्रोब करें कि पेशेंट ने प्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा, और कोई और सिम्टम है कंजक्टिवा के ऊपर कोई इसकी कोई पेशेंट की प्रेजेंटेशन के स्पॉट्स बन गए किसी कलर के, आंखें रेड है, आंखें लाल है, अगर कंजक्टिवल रेडनेस है, डिस्चार्ज हो रहा है तो ये क्या होगा कि इसका ब्लेफरो कंजक्टिवाइटिस दोनों साथ मिल गए हैं। कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशन भी होती है, जनरलाइज इन्फ्लेमेशन होती है। तो हमने सिर्फ इन्हीं सिम्टम्स के ऊपर पेशेंट की फर्स्ट डायग्नोसिस जो है वो बगैर देखे हमारा काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि दोबारा देखें। इचिंग इज अ साइन ऑफ, कभी भी ऐसा पेश आज तक ब्लेफराइटिस का पेशेंट सिर्फ इचिंग से नहीं आया, और जिस भी पेशेंट को हमने ब्लेफराइटिस डायग्नोज किया और सिर्फ इच के ऊपर वो एक्चुअली साबित हुआ कि हमने उसको उसकी एलर्जी ठीक की और ठीक हो गई। तो बर्निंग इज अ साइन। बर्निंग अगर है, बर्निंग किसी और डिजीज का साइन है? बर्निंग इज अ वेरी स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ ब्लेफराइटिस। पोस्टीरियर सिबोलिया जो है ना, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस जो है उसका साइन है। तो ये है सिम्टम्स। अब इसकी बुनियाद पे ही आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी है। मुझे बताएं, अब इचिंग और बर्निंग के जो लेदर जाए वैसे इचिंग काट देना उसमें से, तो बर्निंग की डीडी क्या क्या होगी? आपको हर एक की डीडी पता होनी चाहिए। एक तो स्पेसिफिक इंडिकेटर हो गया ब्लेफराइटिस का, और भी किसी में बर्न हो सकता है। ड्राई आइज में, ड्राई आइज जो है वो उसमें भी ज़ाहिर जलन से शुरू हो जाती है, वो एक डिफरेंट किस्म की जलन होती है, लेकिन बर्निंग उसमें भी हो सकती है। तो बर्निंग दो चीज़ों के, ब्लेफराइटिस एसोसिएटेड विद ड्राई आई और सिंपल ड्राई आई, इन तीनों के लिए वो बर्निंग होगा। इचिंग किस किस के साइन हो सकता है? इचिंग किस किस के रीडिंग हो सकती है?
एलर्जी और एनी इन्फ्लेमेटरी डिजीज काजिंग एलर्जिक सिम्टम्स, मतलब जो भी आपकी ब्लेफराइटिस है वो भी तो एक तरह से सारा कुछ इन्फ्लेमेशन का ही है। इचिंग इज बेसिकली ए साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो सबसे कॉमन है एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, और उसके अलावा बाकी जितनी ब्लेफराइटिस और सारी डिजीज हैं वो सारी की सारी इचिंग कर सकती है। और ग्रिटिनेस ग्रिटनेस और वीक फॉरेन बॉडी सेंसेशंस का है। अगेन ग्रिटनेस कब से है? क्रॉनिक है तो साथ बर्निंग की ब्लेफराइटिस, मतलब ग्रिटनेस अगर चंद एक दो दिन से है, कल से परसों से है, तो हो सकता है कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है। लेकिन अगर उसको ग्रिटिंग फॉरेन बॉडी फीलिंग और ग्रिटनेस काफ़ी अच्छे से महसूस हो रही है तो फिर वो ड्राई है एसोसिएटेड विद सम डिजीज और विदाउट सम डिजीज। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर हम ड्राई आई को शायद मैंने मिस किया और शुरू में बताया कि सबसे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन और सबसे कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट जिसको हमें करनी है वो एसोसिएटेड टीयर फिल्म डिस्टर्बेंस है। तो अब टीयर फिल्म को कैसे इवैल्यूएट करें? पेशेंट आ गया, उसने आपको देखिए ब्लेफराइटिस है, म्यूकोमाइटिस है, माइल्ड म्यूकोमाइटिस है, ठीक है, और पेशेंट को खास प्रेजेंट पे नहीं कर रहा, हल्की सी बस वो मामूली सी कभी पर कहता है दर्द नहीं होती, तो आप उसके एसोसिएटेड ड्राई आई को कैसे इवैल्यूएट करें? सर टीयर फिल्म हाइट ले सकते हैं, क्या करें? टीयर फिल्म की हाइट स्लिट टाइम पे मेजर कर सकते हैं। टीयर फिल्म की हाइट इसमें डिक्रीज होगी? सर ड्राइनेस में हो जाती है, वो ड्राई आई डिजीज के अंदर डिक्रीज होगी, इसमें कैसे डिक्रीज होगी? इसमें तो कंपोजिशन इसमें क्या कम होता है? इसमें आपके ख्याल में ड्राई आई इसके साथ एसोसिएटेड ड्राई आई इसमें टीयर फिल्म क्वालिटी का प्रॉब्लम है, नॉट द क्वांटिटी। क्वांटिटी तो बल्कि ज़्यादा ही होगी बात होगा, इससे क्वालिटी प्रॉब्लम है। तो क्वालिटी को कैसे असेस करें? क्लिनिकल टेस्ट क्या है? ब्रेकअप टाइम माना भट्ट साहब याद है टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम कितना होता है? अच्छा, और उसे कैसे चेक करते हैं? सर टॉपिकल एनेस्थेटिक यूज करके स्टेन करते हैं टीयर फिल्म को, और फिर देखते हैं कि ब्रेक कितनी देर बाद आ रहा है टीयर फिल्म विदाउट लिंक। फ्लोरेसिन का ड्रॉप डालेंगे, ब्लू फिल्टर में देखेंगे जो ग्रीन लेयर है उसमें ब्लैक स्पॉट जो पहला नजर आएगा वो कितनी देर के बाद, इफ इट अपीयर्स इन लेस देन 5 सेकेंड जस्ट डायरेक्ट। Watering can also be a patient watering के साथ हो जाता है। तो ये ऐसे है, मैं पेशेंट को एग्जांपल देता हूँ कि देखें जैसे आपका मोबाइल पुराना हो जाता है ना तो वो थिन हो जाता है, उसी तरह आपकी टीएस पेशेंट की जिस तरह से हमने कहा कि क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो क्वांटिटी ठीक है लेकिन वो सुपरफिशियल लैपिड लेयर जो है वो नहीं है, तो इसकी वजह से वो जल्दी ब्रेक हो जाता है टीयर। और ये उसका टर्मिनोलॉजी क्या है जो लोअर लिड के साथ होती है, मेनिस्कस मार्जिनल टीयर स्टिप। सो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं मार्जिनल टीयर स्टिप? ओसीटी के जरिए, टीयर सेगमेंट ओसीटी पे वो कहता है इतने माइक्रोन की, आप देखने पे भी पता चलता है। आंख ऐसे अगर ज़्यादा हो तो ऐसे लगते हैं आई वाटरफुल टीयरफुल, वो पानी ज़्यादा आया हुआ है। ओके, सो परसों किसकी प्रेजेंटेशन है? अब आपने एक दो दफ़ा बिलाल के साथ बैठ के ना रिहर्सल करनी है, क्योंकि वो हम स्विच कर रहे हैं तो न्यू सिस्टम वो आपके वो होना, उस वक्त प्रॉब्लम ना हो। एक साथ पहली दफ़ा रिहर्सल किसी भी टाइम पे बैठ के तो कर लेना। ठीक है, एक और